Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to start a training over ISO oblique IC 17025 2017 version. The title of the standard is General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. The title is visible to you, the standard number is visible to you, and this is going to be the first part of the training video. Due to the limitation of time, here, the standards first page is visible to you as ISO IC 17025 2017 version. And I am giving this training on behalf of my company, Edison Quality Registrar, that is EQR. So let's start. First, I want to give you a brief detail about this standards history, how it's established, how it's generated, and how the developments are made year by year in this particular stream of requirement with respect to the competence of any kind of laboratory, excluding the medical one, and the calibration respective work. So initially, this standards one ISO guide 25 is there present, uh, which is as numerically defined 25 guide 25 in the year of 1978. That is the first standardized methods which is against the requirement as general requirements for the competence of calibration and testing laboratories. And one parallel methodology is there, that is EN 45001 in the year of 1989. So almost 11 years difference is there in ISO Guide 25 and EN 45001. So these are the two initial standards which is developed uh, in 1978 and 1989 respectively, which is used for governance with respect to the requirement of competence of testing laboratories and calibration laboratories. Uh, and this particular EN 45001 is aligned with the ISO Guide 25. But it's a European norm, European standard. So it's a means a geographical requirement, and based over the languages and different things, they established EN 45001. So don't confuse with EN 45001 with ISO 45001. Both are different thing. As you know, ISO 45001 is for occupational health and safety, and here we are talking about EN 45001. So these are the two standards, as I told you, which was present for monitoring and governing the requirements of the competence in the field of calibration and laboratory work. Okay, so firstly, the ISO oblique IC 17025 is established in the year of 1999. That one was the first publication of this standard. Secondly, it is revised and second edition is published in the year of 2005, and we are going to start the training over the third publication over the 17025, which is published in the year of 2017. It is last reviews in the year of 2023 and remain valid, remain current for further use. So let's start. This is the brief history about this standard.
So I discussed this my presentation of uh, training first page as visible to you. Going over the second page, so in the second slide, I um, highlighted here the introduction part. What are the introduction things with respect to ISO 17025 and mentioned the content with respect to these things. So first point in the introduction is ISO-IC objective, promote confidence, enable dash demonstration dash competently, generate dash valid dash results, principle of ISO 9001. So let's discuss this first point under the introduction. तो सबसे पहली बात यह है कि इस स्टैंडर्ड को आईएसओ और आईसी ने मिलकर बनाया है। आईएसओ का फुल फॉर्म जानते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो इन लोगों ने जॉइंट मैनर में डेवलप किया इस स्टैंडर्ड को 17025 के नाम से, क्योंकि ये एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है जहाँ पे हम लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं, वो टेस्टिंग की हो, कैलिब्रेशन की हो, उसके रिस्पेक्ट में हम रिक्वायरमेंट प्लेस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ट्रेनिंग के थ्रू। इसलिए आईएसओ के साथ आईसी भी जॉइंटली इस स्टैंडर्ड को डेवलप करने में आई। आईसी बेसिकली आपको मिलेंगे, आईएसओ में भी आपको कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स मिलते हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, लेकिन जो आईसी है ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो उसका बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट्स रिलेटेड स्टैंडर्ड डेवलप करती है। जब भी आप यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की तरफ जाएंगे, देखेंगे, तो आईसी से डिराइव्ड है। आईसी भी आईएसओ की तरह एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें नंबर ऑफ कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते हैं। डिफरेंट कंट्री के जो भी रेगुलेटरी वहाँ की अथॉरिटीज है उसके रिप्रेजेंटेटिव। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको किसने डेवलप किया है आईएसओ 17025 को। फर्स्ट जो चीज़ में आती है स्टैंडर्ड में, उसमें ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इस स्टैंडर्ड के थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आता है। जब हम इस स्टैंडर्ड को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं किसी भी टेस्ट लैब में, या फिर इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स को, तो पहली चीज़ उसमें है जो कॉन्फिडेंस है रिजल्ट्स को लेके, ऑपरेशंस को लेके, उसके में कॉन्फिडेंस को हमें प्रमोट करना है। तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और वो कहीं ना कहीं कस्टमर जो हमारा है उस रिजल्ट के थ्रू, हमारे ऑपरेशन के थ्रू जो कंप्लाइड है 17025 के रिस्पेक्ट में, उससे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जिसके थ्रू एक कॉन्फिडेंस प्रमोट होता है सप्लाई चेन के अंदर, कस्टमर के अंदर, लैब ओनर्स के अंदर। तो पहली चीज ये है। इसके साथ ही सेकंड जी ये है, लैब को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है जो कॉम्पिटेंसी है ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। वहाँ ये मतलब इस स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करने से, इम्प्लीमेंट करने से उस लैब के अंदर एक कह लीजिए कॉन्फिडेंस इस तरह से बिल्डअप होता है, वो इनेबल हो जाती है कि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है। अगर उसको कहीं पे भी आंसरेबल होना होता है, जस्टिफिकेशन देना होता है अपने सिस्टम को लेके लैब की, तो उस केस में वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है अपनी कॉम्पिटेंसी को लेके जो हमने ऑपरेशन में इस्टेब्लिश की है थ्रू आईएसओ 17025। साथ ही साथ जो रिजल्ट्स हैं वो वैलिड कहलाते हैं। ये एक हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है जब हमारी
हमारा जो कॉन्फिडेंस हमने प्रमोट कर लिया, हमने ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट और इस्टेब्लिश कर लिया ISO 17025 के अकॉर्डिंग, तो जो हमारे रिजल्ट्स निकल के आएंगे वो वैलिड रिजल्ट कहलाएंगे। और इसमें जो ये एबिलिटी है वैलिड रिजल्ट्स देने की, इसको रीच करती है एक लेबोरेटरी जब भी वो 17025 को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेती है, एक डिक्लेरेशन के फॉर्म में, साथ ही साथ एक थर्ड पार्टी ऑडिट के थ्रू, जैसी भी उसके ऊपर रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है या फिर वो जैसे भी चीज़ों को फुलफिल करना चाहता है। ठीक है, इसके साथ ही स्टैंडर्ड में प्रिंसिपल्स ऑफ ISO 9001 की बात होती है कि प्रिंसिपल ऑफ 9001 को भी साथ साथ अप्लाई करना है जब भी आप 17025 को इम्प्लीमेंट करो, अपने यहाँ इस्टेब्लिश करो, इंटीग्रेट करो अपनी लैब ऑपरेशंस में। तो जो प्रिंसिपल्स हैं 9001 के, उसको भी आपको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट, इस्टेब्लिश और इंटीग्रेट करना है मतलब। तो यहाँ पे अभी हम प्रिंसिपल्स ऑफ ISO 9001 की बात नहीं करेंगे इस ट्रेनिंग में, उसकी मेरी ट्रेनिंग वीडियो है। मैं आपको मेरे इस कंपनी के जो चैनल है यूट्यूब का, उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी ISO 9000 की, जिसमें फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स और वोकेबलरी की बात होती है। तो ISO 9000 जो 9001 का एक रिलेवेंट स्टैंडर्ड है, उसकी ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हो और वहाँ से आप समझ सकते हो कि प्रिंसिपल्स हैं क्या, फंडामेंटल्स हैं क्या, वोकेबलरी हैं क्या विथ रिस्पेक्ट टू 9001। और वहाँ से जो आप इंफॉर्मेशन, जो नोट्स, आप नॉलेज गेन करोगे, उसको आपको 70025 के साथ ही साथ इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इंटीग्रेट करना है, जो भी आपकी लेबोरेटरी की ऑपरेशन है उसमें। तो ये पहला चीज था हमारा, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन के अंदर। सेकंड जो हमारा पॉइंट है उसमें है प्लान डैश इम्प्लीमेंट डैश एक्शन एड्रेस डैश रिस्क्स डैश अपॉर्चुनिटीज मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिवनेस डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेकंड पॉइंट में जो इंट्रोडक्शन के मैंने लिया है उसमें मैं कहना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ आपको कि जो 17025 है, वो चाहता है कि जो लेबोरेटरी है वो प्लान करे, इम्प्लीमेंट करे एक्शंस को विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि वो कैसे डील करेगी जो भी रिस्क प्रेजेंट है लैब ऑपरेशन के, जो उसकी कंप्लीट एक्टिविटीज है उसके अंदर किसी तरह का भी रिस्क है और अपॉर्चुनिटीज की पॉसिबिलिटी है, उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसको दोनों को कैसे साथ में एड्रेस करें, उसके रिस्पेक्ट में 17025 की हेल्प से चीज़ों को इवेल्युएट करके, प्लान करके और एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर पॉलिसी बना के हमें इम्प्लीमेंट करना है एक्शंस को, जिससे हम रिस्क को मिटिगेट कर सके, रिड्यूस कर सके और अपॉर्चुनिटीज जो भी हैं हमारे सिस्टम में प्रेजेंट, उसका बेटर इस्तेमाल कर सके। साथ ही साथ जब हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ISO 17025, तो जो इफेक्टिवनेस है ऑपरेशंस का या फिर हमारी जो सिस्टम है एज अ लेबोरेटरी, वो इन्हेंस होती है, बढ़ती है। तो इस तरह से भी हमें सोचना और फायदा लेना है 17025 का। इसके बाद ही जो नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया इसी सेकंड पॉइंट के अंदर, डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ ही इफेक्टिवनेस के साथ में के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है स्लाइड में
मैनेजमेंट सिस्टम की बात की है इफेक्टिवनेस के रिस्पेक्ट में, तो मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही हमारी जो प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस एक्टिविटीज है, वो सारी कवर्ड होती हैं। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को मिला के जो हमारा सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस इन्हेंस होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है जब भी हम एड्रेस करेंगे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को थ्रू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं एज अ बेनिफिट ऑफ ISO 17025। इसके साथ ही एक एक टर्म कह लीजिए, एक पॉइंट है जो स्टैंडर्ड ऐड करता है, जिसमें वो कहता है कि ये लेबोरेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिसाइड करे कि किस रिस्क और अपॉर्चुनिटी को उसे एड्रेस करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत बड़ी बात है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं इन्फोर्स करना या फिर एडवाइस करना कि आप, आपकी लेबोरेटरी है, आप रन कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, तो उसकी उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को डिसाइड करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्शन, वो आपकी होगी। ठीक है। ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। आप अगर एक एक मतलब एक अच्छे समय तक आपने लेबोरेटरी को रन किया है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, अ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे यूटिलाइज करना है, डिसाइड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ISO 17025। कुछ रिस्क होते हैं हमेशा किसी भी बिजनेस को रन करने में, जो आपके हाथ में नहीं होता है मिटिगेट करना कम्प्लीटली, या उस पे कोई एक्शन लेना जिससे वो रिड्यूस हो जाए। तो वहाँ पे आपको देखना होता है कि आप कैसे डील कर सकते हो उस रिस्क से, रिस्क के होते हुए, और अपने जो ऑपरेशंस हैं, अपने कंप्लायंसेस हैं, कन्फर्मिटी है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, उसको आप फिलफिल कर लेते हो उस रिस्क के होते हुए भी। तो ये एक जब आप 6 मंथ 1 ईयर हो जाते हैं या फिर नंबर ऑफ ईयर्स हो जाते हैं एक लेबोरेटरी को ऑपरेट करते हुए, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है इस चीज़ को समझने की, डील करने की। ठीक है। केस टू केस मैं डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं जेनरिक मैनर में जो किसी भी तरह की टेस्ट लैब है एक्सक्लूडिंग मेडिकल टेस्ट लैब, क्योंकि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है 17025 नहीं एप्लीकेबल होता है, वहाँ पे ISO 15189 की बात होती है। तो ये जो ट्रेनिंग है एक जनरलाइज्ड है, सारी तरह की लेबोरेटरीज के लिए मैं दे रहा हूँ। तो अभी जो मैंने इस बेसिकली डिसीजन की बात करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, उस हिसाब से मैंने अपनी बातों को आपको बताया। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था स्लाइड का। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर है फैसिलिटेट डैश कॉपरेशन, एक्सचेंज डैश एक्सपीरियंस, हार्मोनाइजेशन डैश स्टैंडर्ड्स डैश प्रोसीजर्स, रिजल्ट्स डैश फैसिलिटेशन डैश कंट्रीज। ये मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर थर्ड पॉइंट लिया है। अब यहाँ पे बात हो रही है नेक्स्ट बेनिफिट की, ISO 17025 को यूज करने के लिए, करने पे हमें क्या मिलेगा। तो पहली जो चीज़ है इसमें जो कॉपरेशन है, जो लेबोरेटरीज के बीच में है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड अदर बॉडीज जो हैं उसके बीच में है, या फिर कस्टमर के साथ हो सकती है, अनदर टेस्ट लैब के साथ सकती है। तो अगर हम इस 17025 को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपने लेबोरेटरी में, तो ये जो कॉपरेशन है वो फैसिलिटेट होता है। तो पहला बेनिफिट यहाँ पे थर्ड पॉइंट का ये है। ठीक है। क्योंकि जो हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, हम डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं चीज़ों को, हमारे रिजल्ट्स वैलिड हम डिक्लेयर कर पा रहे हैं, इनसे जो हमारा एंड रिजल्ट निकल के आता है वो है कॉपरेशन का फैसिलिटेशन। ठीक है। ये वहीं से निकल के आ रहा है। तो ये एज अ थर्ड बेनिफिट हमें देखना है।
इसका इसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस की एक्सचेंज की बात होती है, एक्सपीरियंसेस की बात होती है। तो कॉपरेशन जो है डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिलेटिवली मतलब बिजनेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनके बीच में ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज किया जा सकता है, या फिर जो भी एक्सपीरियंस है उनको एक्सचेंज किया जा सकता है, जिससे भी बेटर आउटकम निकल के आ सकता है with respect to customer satisfaction, with respect to demonstration, with respect to confidence। तो इस तरह से चीजें देखनी है। और साथ ही साथ हार्मोनाइजेशन की बात करता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो कि हम एज अ मेथड यूज करते हैं इन द एक्सक्यूशन ऑफ वर्क ऑफ टेस्टिंग लेबोरेटरी और कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, तो ये जो मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, उसमें हमें एक हार्मोनाइजेशन हम इस्टेब्लिश कर पाते हैं जब भी दो तीन चार नंबर ऑफ फर्म्स जो वर्क कर रही हैं सप्लाई चेन के अंदर, वो कॉमन जब 17,025 को इम्प्लीमेंट करती हैं तो उनको सेम प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, सेम रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती हैं, जिससे हमारा हार्मोनाइजेशन स्टैंडर्ड को लेके, प्रोसीजर्स को लेके डेवलप होता है और मेंटेन होता है। इसके साथ ही साथ जो हमारा थर्ड पॉइंट का लास्ट पॉइंट है जो रिजल्ट्स को लेके है, तो जो रिजल्ट्स हम जनरेट कर रहे हैं एक इस्टेब्लिश्ड लैब में जो कि कंप्लाइड है 17,025 को लेके, उसके रिजल्ट्स का जो एक्सेप्टेंस है वो डिफरेंट कंट्रीज में फैसिलिटेट होता है। तो ये लास्ट बेनिफिट है, इसको आप समझ सकते हो। जैसे कि आईलैक एक बॉडी है जो इंटरनेशनल लेबोरेटरी की एक फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्रीडेशंस को गवर्न करती है। इंडिया में हम बात करें तो एनएबीएल है। कुछ कंट्रीज मीरा की बात करती हैं, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एक्रीडेशन बोर्ड्स हैं, जैसे एनएबीएल इंडिया का है। तो जो कंट्रीज है उसमें फैसिलिटेट होती हैं हमारे जो भी रिजल्ट्स जनरेट होते हैं जब भी हम एक्रीडेटेड सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं। तो कोई पर्टिकुलर टेस्टिंग एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के लिए अगर टेस्ट हुई है इंडिया में, तो वही मतलब जो टेस्ट रिपोर्ट है वो सेम आपकी यूरोप में, दूसरे कॉन्टिनेंट में, यूएस में यूज हो जाएगी, यूटिलाइज कर सकते हो आप विदाउट डाउट। तो इस चीज को कहते हैं फैसिलिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इस तरह से आपको समझना है, ध्यान रखना है कि जो टेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, जो स्पेसिफिकेशन है टेस्टिंग के, कैलिब्रेशन के, वो सेम होने चाहिए। तब ये जो फैसिलिटेशन है टेस्ट रिजल्ट्स का वो वर्क करता है और इस तरह से आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। इसके साथ ही साथ जो फोर्थ पॉइंट है इंट्रोडक्शन के अंदर वो है शैल, शुड, मे, कैन। तो सिमिलरली जैसे हमने डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ की बात की थी, इनकी डिफिनीशन को लेके ये जो भी वर्बल फॉर्म्स हैं उनकी जो डिफिनीशंस है यहाँ पे भी सेम है। शैल का मतलब है एक रिक्वायरमेंट, शुड का मतलब है रिकमेंडेशन, मे का मतलब है परमिशन, और कैन का मतलब है पॉसिबिलिटी और या फिर कैपेबिलिटी। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो शैल के रिस्पेक्ट में ही देखनी है। ठीक है, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, अच्छा मैनेजमेंट होता है, वो शैल के रिस्पेक्ट में हर चीज़ को देखता है, एज अ रिक्वायरमेंट देखता है, इन डेप्थ उसकी चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, रिव्यू करता है, उसकी बेसिस पे फर्दर इस्टेब्लिशमेंट के लिए, फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए एक्शन या फिर डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो डेवलप करता है। क्योंकि ये सारे जो स्टैंडर्ड्स मतलब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ट्रेनिंग के थ्रू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में कॉन्फिडेंस के लिए।
और डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कॉन्फिडेंस को लेके। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी आप शुड में और कैन को भी शैल की तरह आपको देखना, इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू, और आपको हेल्प करेगा चीज़ों को बेटर इम्प्रूव करने के लिए। तो ये मेरी एडवाइस है पर्टिकुलरली यहाँ पे, इसको आप इस तरह से देखिए। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पेज था। इसमें हमने ये सारी बातें की इंट्रोडक्शन से लेके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम बातें करेंगे ट्रेनिंग के थ्रू क्लॉज वाइज क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ISO 17025 की। सो ये थर्ड पेज है स्लाइड का। क्लॉज का नाम है, जस्ट अ सेकेंड, स्कोप। इसमें फर्स्ट क्लॉज है नॉर्मेटिव रेफरेंस है, सेकंड थर्ड है टर्म्स एंड डिफिनीशन। ठीक है, ये थ्री क्लॉजेस मैंने कवर किए हैं। और यहाँ पे एक टाइटल मेंशन की हुई है स्टैंडर्ड में, जिसमें डिटेल है जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंपिटेंस ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। जो टाइटल है ISO 17005 की, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने। साथ ही साथ स्टैंडर्ड में एज इट इज उन्होंने मेंशन किया है क्लॉज को स्टार्ट करने से पहले, जब भी क्लॉज की रिक्वायरमेंट दी है उससे पहले। तो फर्स्ट जो क्लॉज है उसमें स्कोप है। तो मैंने इसको स्कोप किस तरह से डिफाइन किया है, सब हेडिंग ली है इसके स्कोप के अंदर, वो है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स में जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं स्टैंडर्ड से, वो है कंपिटेंस, इम्पार्शियलिटी एंड कंसिस्टेंसी, laboratory activities regardless of size, recognizing the competence। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो मैंने स्टैंडर्ड से लिए हैं। सो फर्स्ट स्कोप क्लॉज के अंदर पहली बात है जनरल रिक्वायरमेंट्स की। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जनरल रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, किसी भी तरह की स्पेसिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं जनरल रिक्वायरमेंट में। यहाँ पे एक ओवरऑल सिस्टम कैसा होना चाहिए, उस सिस्टम को कैसा बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, ना कि लेबोरेटरी की किसी तरह की कंडीशंस के बारे में बात की गई है। जैसे कि होता है लैब ऑपरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई गई हैं, ना ही किसी स्टैंडर्ड की बात की गई है प्रोसीजर की। अभी हम धीरे धीरे जो चीज़ें समझेंगे वो जनरल रिक्वायरमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी वर्क एक्सक्यूशन, चाहे वो टेस्टिंग में हो चाहे वो कैलिब्रेशन में हो। और इस जनरल रिक्वायरमेंट्स में जो चीज़ें स्टैंडर्ड में स्पेसिफाई की गई हैं वो है कंपिटेंस को लेके, कंपिटेंसी कैसी होनी चाहिए लैब की, कंपिटेंसी को कैसे मेंटेन करना है, क्या रिकॉर्ड्स उसके लिए होने चाहिए आपके पास, क्या आपके पास प्रोसीजर्स होने चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कंपिटेंस के आप इम्पार्शियलिटी के लिए क्या चीज़ें इस्टेब्लिश करोगे, इंटीग्रेट करोगे। ये सारी रिक्वायरमेंट्स दी हैं स्टैंडर्ड के अंदर ISO 17025 के अंदर। साथ ही साथ जो ऑपरेशंस की कंसिस्टेंसी है उसको कैसे आप मेंटेन करोगे। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट पिलर है विथ रिस्पेक्ट टू जनरल रिक्वायरमेंट्स, जिसके बारे में स्टैंडर्ड बात करता है और रिक्वायरमेंट्स को आपके सामने रखता है, और जिसको आपको समझना है, फॉलो करना है अपने सिस्टम के अंदर, और चीज़ें इस्टेब्लिश और इंटीग्रेट करनी है। तो ये चीज़ पहला पॉइंट है जनरल रिक्वायरमेंट स्कोप के अंदर। साथ ही साथ सेकंड स्कोप में बात आती है कि अप्लीकेबिलिटी की, कि ये जो ISO ऑब्लिक IC 17025 है वो किस किस तरह की टेस्ट लैब पे अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है लेबोरेटरी एक्टिविटी को, उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। वो चाहे कितने भी
नंबर ऑफ पीपल के द्वारा ऑपरेट की जा रही है, उसका कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। जब आप अप्लाई करने के लिए जाते हो इस स्टैंडर्ड को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये दो चीजें हैं जो अप्लीकेबिलिटी के रिस्पेक्ट में मैंने बताई, इसका ध्यान रखना है, इस पे क्लियर रहना है। थर्ड है कि ISO IEC 17005 का यूज किया जाता है या कर सकते हैं जब भी हम कंफर्म करने की बात करेंगे कंप्लायंसेस को, रिकॉग्निशन को, कॉम्पिटेंस के लेबोरेटरी के लिए। तो ये जो कंफर्मिंग है और रिकॉग्निशन है एक लेबोरेटरी वर्क को के लिए, वो ISO/IEC 17025 के जो इंफॉर्मेशन है, रिक्वायरमेंट्स है, उसके बेसिस पे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्कोप का थर्ड पॉइंट है। और ये जो कंफर्मिंग और रिकॉग्नाइजिंग है, ये कौन करता है? वो उसमें हो सकती हैं आपके कस्टमर्स हो, आपके लेबोरेटरी के रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो, कोई कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ये कर सकती है। कोई स्कीम्स हो पीयर असेसमेंट लेके, उसके थ्रू ये रिकॉग्नाइजिंग और कंफर्मिंग हो सकता है। एक्रेडिटेड बॉडीज की बात हो सकती है, वो कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्कोप था। तो स्कोप के लिए बहुत क्लियर रहना है। स्कोप नॉर्मली किसी को पता नहीं रहता है कि, या फिर इस पे इम्पोर्टेंस इस पे लोग कम देते हैं जब भी स्टैंडर्ड की बात करते हैं। वो ट्रेनिंग को लेके हो या फिर सेल्फ अवेयरनेस को लेके हो, तो स्कोप पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि स्कोप क्या है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का, जो आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें थी मेरी ट्रेनिंग में। फर्स्ट जो क्लॉज है स्कोप, उसके अंदर अब हम सेकंड क्लॉज पे चलते हैं। सेकंड क्लॉज जो है वो है नॉर्मेटिव रेफरेंसेस की बात होती है उसमें। उसमें पहला जो चीजें मैंने लिया है वो है ISO/IC गाइड 99 2007, इंटरनेशनल वोकेबलरी ऑफ मेट्रोलॉजी, बेसिक एंड जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड एसोसिएटेड टर्म्स। तो ये जो ISO/IC गाइड 99 है, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, अवेलेबल है। आप सर्च करोगे सर्च इंजन पे इंटरनेट के, तो आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो इसमें बेसिक एंड जनरल कॉन्सेप्ट्स की बात है, जो भी टर्म्स यूज करते हैं हम लोग लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में, उन सारी टर्म्स की डिफिनीशंस अच्छे से बताई गई है, कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है, और मेट्रोलॉजी क्या है उस उसके रिस्पेक्ट में जो वोकेबलरी है, वो क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें वहाँ पे डिफाइन की गई हैं। तो ये चीजें हैं, मतलब हम यहाँ पे भी टर्म्स एंड डिफिनीशन जो आगे थर्ड क्लॉज है उसके अंदर हमारी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डिफिनीशन है जो मैं आपको ब्रीफ करूंगा अभी, जो कि अभी यहाँ पे सफिशिएंट है आपको ब्रीफ करने के लिए इन द ट्रेनिंग, मतलब डिटेल में जाके 17025 को लेके। लेकिन अगर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जाना चाहते हो तो ISO/IC गाइड 99 को एक बार आप पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, वोकेबलरी को उसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट्स को समझो, जो भी टर्म्स यूज हुए हैं उसमें उन चीज़ों को भी आप अच्छी तरीके से आप समझेंगे, तो वो एक बटन नॉलेज की तरह निकल के आपके लिए यूजफुल होगा। नॉर्मेटिव रेफरेंस के अंदर जो सेकंड है स्टैंडर्ड, वो है ISO/IC 17000 2020। इसका टाइटल है वोकेबलरी एंड जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड है ISO/IC 17000 2020, ये कन्फर्मिटी रिलेटेड वोकेबलरी और जनरल प्रिंसिपल्स की बात करता है, जो कि एक एक्सपर्ट लेवल, जब आप लेबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हो तो वहाँ बहुत ज़रूरी होती है, जो बेसिक वोकेबलरी आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए,
जनरल प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए कन्फर्मिटी के। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जनरल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। उसमें एक फ्लो डायग्राम है जनरल प्रिंसिपल का, जिसको मैं आपको ट्रेनिंग के थ्रू उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, गाइड करूंगा। तो अभी तक यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, मतलब सेकंड जो अपना ये कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो थर्ड क्लॉज है वो है टर्म्स एंड डेफिनेशन। तो इसमें मैंने जो टर्म्स लिया है जो ISO/IC में है 17025 के, वो है पहला इम्पार्शियलिटी, कंप्लाइंट, इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन, इंट्रा लैबोरेटरी कंपैरिजन, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, लैबोरेटरी डिसीजन रूल, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। तो अब मैं वन बाय वन आपको ब्रीफ करता हूँ इंडिविजुअल टर्म के लिए कि इंडिविजुअल टर्म है क्या, उसकी मीनिंग क्या है, उसको किस तरह से समझना है। ठीक है, तो पहला जो अपना टर्म था वो था इम्पार्शियलिटी। इसकी जो मीनिंग है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर डिफिनेशन है, बहुत गहरे इसकी मीनिंग है। मतलब जब हम प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिविटी है किसी चीज को एक्सक्यूट करने के लिए, किसी वर्क को डिलीवर करने के लिए, वो प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, और किसी भी तरह की इम्पार्शियलिटी ना इन्वॉल्व हो या फिर नहीं होनी चाहिए, तभी हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिविटी थी वो प्रेजेंट थी जब भी वर्क को डिलीवर किया गया। ऑब्जेक्टिविटी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमारा किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा किसी वर्क को लेके, तब हमारी ऑब्जेक्टिविटी एक क्लियर मानी जाएगी। अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था पहले से तो उसको रिजॉल्व कर लिया गया होगा वर्क एक्सक्यूशन से पहले, तो उस कंडीशन में जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी है वो सही मानी जाएगी और इस्टेब्लिश्ड मानी जाएगी, विदाउट इम्पार्शियलिटी मानी जाएगी। जिससे कि, और ये ऑब्जेक्टिविटी क्लियर होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये एडवर्सली कहीं ना कहीं इफेक्ट ना डालें जो भी हम वर्क को एक्सक्यूट करने जा रहे हैं जब लेबोरेटरी के। तो ये ऑब्जेक्टिविटी को लेके चीज़ें थी। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिविटी के लेके या फिर इम्पार्शियलिटी को लेके कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, जो डिफाइन करती है इम्पार्शियलिटी को, कंडीशन को। जैसे उसमें पहला है फ्रीडम फ्रॉम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड है फ्रीडम फ्रॉम बायस। थर्ड है लैक ऑफ प्रीजुडिस। फोर्थ है न्यूट्रलिटी। फिफ्थ है फेयरनेस। सिक्स्थ है ओपन माइंडनेस। सेवेंथ है इवन हैंडेडनेस। एट्थ है सेवेंथ है डिटैचमेंट। और एट्थ है बैलेंस। तो ये सब चीज़ें हमें मेंटेन करनी है एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, एज अ प्रॉपर्टी वर्क इज एग्जीक्यूशन के लिए। तब हमें माना जाएगा जो हमने वर्क एग्जीक्यूट किया वो इम्पार्शियल था, हमने इम्पार्शियलिटी को मेंटेन किया। तो इसका ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से ये वर्ड्स को डिफाइन कर देता हूँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इम्पार्शियलिटी के, उन चीज़ों को। पहला था फ्रीडम फ्रॉम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड था फ्रीडम फ्रॉम बायस। थर्ड था लैक ऑफ प्रीजुडिस। फोर्थ था न्यूट्रलिटी। फिफ्थ था फेयरनेस। सिक्स था ओपन माइंडनेस। सेवन था इवन हैंडनेस। सेवन था डिटैचमेंट और एट था बैलेंस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें फॉलो करना है जब भी हम इम्पार्शियलिटी को लेके सोचें और वर्क को एक्सक्यूट करें और डिक्लेयर करें कि वी आर इम्पार्शियल lab in the work execution, in the operation, in the test report test result generation। तो ये चीजें थी इम्पार्शियलिटी को लेके। सेकंड जो टर्म था
जो अपना क्लॉज है थर्ड टर्म्स एंड डेफिनेशंस के अंदर, वो है कंप्लेंट। तो कंप्लेंट को हमें इस तरह से समझना है, आपके कस्टमर के रूप में या फिर कोई इंटरनल कोई आपका एम्प्लॉय है, वो अगर किसी चीज से डिससेटिस्फाई है, उसने एक्सप्रेस किया डिससेटिस्फेक्शन को अपने लेबोरेटरी के जो भी एक्टिविटी हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको लेके, तो उसको हमें कंप्लेंट की तरह देखना है। और ये ध्यान रखना है जब भी इस तरह का डिससेटिस्फेक्शन हमें देखने को मिले, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो एक्सपेक्टेड है, तभी हम वहाँ पे उसको कंसीडर करेंगे कंप्लेंट की तरह। नंबर ऑफ टाइम्स, तो जब उन रिजल्ट्स को वो कंपेयर करेगी, तो तब हम बात करेंगे वो एज अ डिफिनीशन, एज अ मेथड इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन। तो दोनों अलग चीजें हैं। लास्ट में हमने इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन की बात करी, यहाँ पे इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन है। तो इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन जो है वो टोटली आपका इन हाउस है। वो नंबर ऑफ टाइम्स आप टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो कोई स्पेसिफिक आइटम को लेके, इन सेम कंडीशन, जो भी आपकी लैब आप मेथड यूज कर रहे हो, कंडीशन फॉलो कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इंटा लेबोरेटरी कंपैरिजन है। ये हम दोनों चीजें तभी करते हैं जब हम इंश्योर होना चाहते हैं, इंश्योरिटी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं, तभी हम करते हैं। जो फर्स्ट फेज होता है वो इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन का होता है, और इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन पे हम सेकंड फेज पे जाते हैं। और दोनों का जो यूज है वो अनसर्टेनिटी को लेके ही है, कि अनसर्टेनिटी को हमें रिड्यूस करना है, जो हमारे टेस्ट रिजल्ट्स हम जनरेट कर रहे हैं, दे रहे हैं किसी को भी। थर्ड जो टर्म है वो है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग की जब भी हम बात करेंगे, तो उसमें इवैल्यूएशन होता है बेसिकली प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के थ्रू, एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट का उसके परफॉर्मेंस को लेके, जो कि एक प्री स्टैब्लिश क्राइटेरिया के अंदर होता है। और हमें उसमें यूटिलाइज करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के अंदर जो टेक्निक, वो होती है इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजंस, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन की टेक्निक को हमें यूज करके एक प्री स्टैब्लिश क्राइटेरिया के अंदर इवेल्युएट करना है जो भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज पार्टिसिपेट करती हैं प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के लिए जाती हैं। तो ये चीजें थी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग की। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड भी है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग को लेके, ISO/IC 17043, जिसमें प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के बारे में रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो। या इन फ्यूचर मैं एक पर्टिकुलर टेस्टिंग ISO/IC 17043 के ऊपर बनाऊंगा ट्रेनिंग का, तो आप वहाँ से भी उसको फर्दर यूज कर सकते हो अपनी नॉलेज और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। नेक्स्ट जो टर्म है वो है लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में कोई भी बॉडी, यहाँ पे बॉडी की बात होती है, जैसे कि हम जब कन्फर्मिटी सिस्टम की बात करते हैं, कन्फर्मिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें सर्टिफिकेशन बॉडी आती है, इंस्पेक्शन बॉडी आती है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन बॉडी बॉडी आती है, ट्रेनिंग बॉडी आती है। तो ये सारी जो बॉडीज हैं, हम मतलब ये इंटरनेशनल एक मतलब तरीका है डिनोट करने के लिए इस तरह की कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे मेरी कंपनी एडिसन क्वालिटी रजिस्ट्रार है, EQR, तो वो भी एक बॉडी है, वो सर्टिफिकेशन बॉडी है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन बॉडी है, एडवाइजिंग बॉडी है, कंसल्टिंग बॉडी है, ट्रेनिंग बॉडी है, टेस्टिंग बॉडी है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर कोई बॉडी परफॉर्म कर रही है एक्टिविटी जो कि टेस्टिंग से रिलेटेड हो, कैलिब्रेशन से रिलेटेड हो, सैम्पलिंग से रिलेटेड हो,
या या फिर साथ ही साथ कोई एसोसिएट सब्सिक्वेंट वर्क और टेस्टिंग और कैलिब्रेशन को लेके, तो उनको हमें डिनोट करना है लेबोरेटरी के नेम से। तो ये डिफिनीशन थी लेबोरेटरी की। आप यहाँ समझ चुके होंगे लेबोरेटरी को हमें कैसे समझना है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिसीजन रूल। इसके अंदर मतलब जब भी हम कन्फर्मिटी को डिक्लेयर करते हैं यस और नो के फॉर्म में, पास और फेल के फॉर्म में, जो भी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट थे उसके अगेंस्ट में, तब हमें ध्यान रखना होता है कि डिसीजन रूल क्या था, उसमें हमने कैसे जो अकाउंटिंग थी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की, वो किया था अकाउंटिंग हमने वहाँ पे, जिसके बेसिस पे हमने डिसीजन रूल के अंडर कन्फर्मिटी को डिक्लेयर किया। तो ये चीजें हैं डिसीजन रूल के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो ध्यान देना है कि जो अनसर्टेनिटी थी मेजरमेंट की, उसकी जो इवेल्युएशन था उस अनसर्टेनिटी लेवल को, हमने उसको कैसे रिड्यूस किया या फिर कैसे उसको इंश्योर किया कि अनसर्टेनिटी लेवल जो बेस्ट हो सकता है, एक्सेप्टेंस लेवल में हो सकता है, वो हम किस रूल के थ्रू पहुंचे थे और कैसे हमने उसको डिसाइसिव बनाया था। तो ये था डिसीजन रूल हमारा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है टर्म वो है वेरिफिकेशन। इसके अंदर जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट थे जिसके रिस्पेक्ट में हमने लेबोरेटरी के वर्क को किया, तो उसे हमें चेक करना है, हमारे पास चीज़ें वेरीफाई करनी है वेरिफिकेशन के थ्रू, कि जो ऑब्जेक्टिविटी या फिर ऑब्जेक्टिव एविडेंस थे वो मेथड को लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, रिसोर्सेज को लेके हो, वो सारी चीज़ें जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट थी उसके रिस्पेक्ट में मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, फुलफिल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन एक्टिविटी। इसमें स्टैंडर्ड में 3 एग्जांपल्स भी हैं ISO/IC में 70025 के अंदर। पहला एग्जांपल जो है उसमें बात आती है confirmation that a given reference material as claimed is homogeneous for the quantity, value and measurement procedure concerned, down to a measurement portion having a mass of 10 kg। तो यहाँ पे होमोजीनियस की बात हो रही है, जो क्लेम किया जा रहा है उसको हमें कंफर्म करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं है, जिसमें एक वैल्यू थी, क्वांटिटी थी, वो डिफाइंड थी, प्रोसीजर डिफाइंड थे, और साथ ही साथ जो मेजरमेंट पोर्शन था उसका मास था 10 केजी। तो 10 केजी सॉरी 10 मिलीग्राम। तो इसके रिस्पेक्ट में वेरिफिकेशन जो है वो क्लियर, मतलब जो हमारा क्लेम है होमोजीनियस होने का, वो इंश्योर हो रहा है थ्रू कंफर्मेशन कि जो रेफरेंस मटेरियल था वो होमोजेनियस था, जो भी क्वांटिटी हमने ली थी और जो मेजरमेंट प्रोसीजर हमने कंसर्न था उसको यूज करते हुए। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल है। इसमें आपको क्वेरी हो सकती है, ये मैं फिजिकल अगर ट्रेनिंग देता तो आपको इस पे क्लैरिटी हो सकती थी। ठीक है, या फिर आप सिमिलर आपके लेबोरेटरी के कुछ स्कोप के ऊपर मैं इसको डिफाइन कर सकता था। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको ब्रीफ कर पाऊँ इसको क्लियरली। तो जो हम चीज़ें मैंने बताई वेरिफिकेशन के रिस्पेक्ट में एग्जांपल से पहले, उसको अगर आपने ध्यान से समझा है तो यहाँ पे भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो
रेफरेंस मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, उसके होमोजीनियस होने के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि वेरीफाई करना है रेफरेंस मटेरियल को कि वो होमोजीनियस है कि नहीं, या फिर होमोजीनियस डिक्लेयर किया गया है रेफरेंस मटेरियल को। तो उसके लिए जो डिक्लेयर करने के लिए जो वैल्यू ली गई है, प्रोसीजर यूज किए गए हैं, वो सही थे कि नहीं, और जो क्वांटिटी थी उस कंडीशन में 10 मिलीग्राम को हमें यूज करना है, जिसके बेसिस पे डिक्लेरेशन किया गया है रेफरेंस मटेरियल का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वेरिफिकेशन जो है उसमें सारे जो एक्टिविटी में क्रेडेंशियल्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इवैल्यूएशन के लेके लेबोरेटरी एक्टिविटी के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंसीडर करना है। वेरिफिकेशन को लेके जब बात करेंगे आप, जो भी प्रोविज़न है लेबोरेटरी के वर्क एक्सक्यूशन के एक्टिविटी को रन करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको वेरिफिकेशन के थ्रू चेक करनी है, वेरीफाई करनी है और इंश्योर करना है जो टेस्ट रिजल्ट्स निकल के आएंगे वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ एग्जाम्पल 2 में कंफर्मेशन की बात करता है स्टैंडर्ड, जो परफॉर्मेंस है उसकी प्रॉपर्टीज या फिर लीगल रिक्वायरमेंट है उसकी कंफर्मेशन के लिए हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि वो हमने परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज को अचीव किया है कि नहीं किया है, लीगल रिक्वायरमेंट्स थी उसको अचीव किया है कि नहीं किया है। इसके बाद वेरिफिकेशन के अंदर एग्जाम्पल 3 में जो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी थी, उसके भी जो भी टारगेट था उसको कंफर्म करने के लिए हम वेरिफिकेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें थी 3 एग्जांपल्स में वेरिफिकेशन को आईएसओ ऑब्लिक आईएसी 17025 अच्छी तरह से डिफाइन करना चाहता है। जो मैंने पहले बताया उसके थ्रू आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी वेरिफिकेशन को लेके, उसको आपको ध्यान में रखना है, जो आपको हेल्प करेगा जब भी वेरिफिकेशन एक्टिविटी की बात आएगी। नेक्स्ट और लास्ट टर्म जो है थर्ड क्लॉज में वो है वैलिडेशन का। सो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बोलता है कि जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी वेरिफिकेशन से निकल के आई थी, लेबोरेटरी के वर्क से निकल के आई थी एज अ टेस्ट रिजल्ट, वो हम एडिक्वेट हैं, हम उसको फर्दर यूज कर सकते हैं इंटेंडेड यूज के लिए। जैसे हम मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट कर रहे हैं, केमिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट्स हमारे निकल के आए वो एडिक्वेट हो, इसको इंश्योर करना है वैलिडेशन के थ्रू, जिससे हम फर्दर उसका यूज कर सकें, जो भी उसका इंटेंडेड यूज हमें लेना है। तो वैलिडेशन जो है ये वेरिफिकेशन का एक नेक्स्ट लेवल है। वेरिफिकेशन एक हम आप कह सकते हैं कि जिस स्टाफ के थ्रू होता है या फिर जो पर्सनल इसको एक्सिक्यूट करेंगे वेरिफिकेशन एक्टिविटी को, तो जो वैलिडेशन का एक्टिविटी को एक्सिक्यूट करने वाले इंडिविजुअल्स होंगे, पर्सनल होंगे, वो कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज कुछ ज़्यादा होगी वेरिफिकेशन को एक्सिक्यूट करने वाले टीम से, जिससे रिजल्ट की जो वैलिडिटी है, वैलिडेशन है, उसको इंश्योर किया जा सकता है और फर्दर हम जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं, मेजरमेंट हैं, उनकी एडिक्वेसी को हम क्लेम कर सकते हैं और फर्दर हमारे जो इंटेंडेड यूज है उस टेस्ट रिजल्ट्स को लेके हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखना है वैलिडेशन को। इसके साथ ही वैलिडेशन में एक एग्जाम्पल भी है आईएसओ ऑब्लिक आईसी 17025 के अंदर, जिसमें बात होती है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अ मेजरमेंट प्रोसीजर ordinarily used for the measurement of mass concentration of nitrogen in water may be validated also for
मेजरमेंट ऑफ मास कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ह्यूमन सीरम। ठीक है, तो पहली बात है कि एक प्रोसीजर है मेजरमेंट का जिसके थ्रू हम जो मास कंसंट्रेशन है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन जो वाटर में है उसका कंसंट्रेशन मास का कितना है। ठीक है, तो हम वैलिडेशन करने के लिए जाएंगे उस सेम प्रोसीजर का, या हमें वैलिडेट करना है। अगर वही सेम प्रोसीजर हम यूज करें मास कंसंट्रेशन को नाइट्रोजन का जो है उसको इवेल्युएट करने के लिए ह्यूमन सीरम के अंदर, तो हमें वैलिडेट करना पड़ेगा कि वो सेम जो मेजरमेंट प्रोसीजर है वो वहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब हम एक प्रॉपर वैलिडेशन, एक वेरिफिकेशन के थ्रू, फिर वैलिडेशन के थ्रू इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट प्रोसीजर है वो दोनों कंडीशन के लिए ओके है, चाहे वो वाटर में हम इवेलुएट कर रहे हो, ह्यूमन सीरम में इवेलुएट कर रहे हो, दोनों जगह पे सेम मेजरमेंट प्रोसीजर अप्लाई हो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर वैलिडेशन है। वैलिडेशन में अगर हमारी रिजल्ट्स जो है वैलिडेशन के थ्रू जो रिजल्ट है वैलिडेशन के वो नहीं मैच करते हैं दोनों कंडीशन में, उस केस में हमारा जो मेजरमेंट प्रोसीजर है वो दोनों जगह हमारा क्लेम नहीं कर सकते, हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से यूटिलाइज करना है वैलिडेशन एक्टिविटी को इन द रिस्पेक्ट ऑफ ISO IC 17025। तो यहाँ तक थर्ड क्लॉज था जो टर्म्स मैंने आपको डिफाइन किए। इसके साथ ही साथ जो मैंने सेकंड क्लॉज था नॉर्मेटिव रेफरेंस, इसके अंदर मैंने बात की थी ISO ऑब्लिक IC 17000 2020 की। इसका एक स्पेसिफिक फ्लो डायग्राम है कंफर्मिटी के लिए, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैंने उसको दिया है। ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है जब आप प्रिंसिपल ऑफ कंफर्मिटी असेसमेंट की बात करते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए कंफर्मिटी असेसमेंट के लिए। कंफर्मिटी का मीनिंग यही है डिक्लेरेशन कंफर्म करना, डिसीजन मेकिंग करना। जब आप पास फेल की बात करते हो, ओके नॉट ओके की बात करते हो, यस एंड नो में आंसर देते हो, डिक्लेयर करते हो कि प्रोडक्ट पास हुआ या फेल हुआ, और उससे रिलेटेड असेसमेंट कैसा होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के रिस्पेक्ट में प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए उसको ये डायग्राम ISO ऑब्लिक IC 17000 2020 में जो दिया गया है मैंने यहाँ पे लिया है एनेक्चर A के अंदर। तो ये फिगर A.1 है, फंक्शनल अप्रोच टू कंफर्मिटी असेसमेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसकी टाइटल है नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा, और नीड टू डेमोन्स्ट्रेट की बात करेंगे जो कि जरूरी है कंफर्मिटी को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो पहली इसमें जो चीज है वो है सिलेक्शन की बात है। ठीक है, अब सिलेक्शन में क्या क्या चीजें हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। पहले हम एक बार इसको गो थ्रू हो लेते हैं, फिर मैं इंडिविजुअल पॉइंट को डिफाइन करूंगा। तो पहला जो हमारा सिलेक्शन है जो हमने अभी बात करी डिमॉन्स्ट्रेशन की, उसके अंदर फिर सिलेक्शन से हम जाते हैं इंफॉर्मेशन ऑन सेलेक्टेड आइटम्स, फिर उसके बाद हम जाते हैं डिटर्मिनेशन, उसके बाद हम जाते हैं इंफॉर्मेशन ऑन फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद हम जाते हैं रिव्यू के लिए, रिव्यू से हम जाते हैं डिसीजन फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स डिमॉन्स्ट्रेटेड। ठीक है, तो डिसीजन की यहाँ पे बात हो रही है, तो यस होगा तो अटेस्टेशन है, नो होगा तो एंड की तरफ जा रहे हैं। अटेस्टेशन में जब जा रहे हैं तो अटेस्टेशन से हमारा है सर्विलेंस नीडेड है, तो यस होता है तो हम फिर से सिलेक्शन पे जाते हैं, नो होता है तो हमारा एंड हो जाता है। तो ये चीजें हैं
जो हमें फॉलो करनी है जब भी हम प्रिंसिपल की बात करेंगे कन्फर्मिटी असेसमेंट को लेके। इसमें जो की है, ये पर्टिकुलर जो शेप है, शेप ए कन्फर्मिटी असेसमेंट फंक्शन है। ये पर्टिकुलर जो शेप है वो शेप बी है, आउटपुट फ्रॉम अ फंक्शन और इनपुट टू द नेक्स्ट फंक्शन है। ये जो पर्टिकुलर शेप है, शेप सी डिसीजन पॉइंट है। तो इसका ध्यान रखना है जब भी आप प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखो कंफर्मिटी असेसमेंट के लिए, और इस पर्टिकुलर फ्लो डायग्राम को फॉलो करो जो कि एडवाइज्ड है 17025 के अंदर आईएसओ ऑब्लिक आईसी का जो है। ठीक है, तो सिलेक्शन में जो पहली चीजें हैं, जब हम कंफर्मिटी असेसमेंट के लिए जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिकेशन ऐसा है एज अ कंप्लीट थिंग, एज अ कंप्लीट सैंपल स्पेस जो कि हमें जरूरी है असेसमेंट करने के लिए का। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है अपने कंफर्मिटी असेसमेंट में जाने से पहले। पहली चीज ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में इंफॉर्मेशन ऑन सिलेक्टेड आइटम्स की बात आती है। तो जो इंफॉर्मेशन हमने सिलेक्शन के थ्रू गैदर की थी, आइडेंटिफाई की थी, उसमें से क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जब हम किसी कंपनी के ऊपर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं। वहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन लेनी होती है हमारे सिलेक्शंस के अंदर से, जो हमने अभी यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस किया। उनमें से वो इंफॉर्मेशन क्या है अवेलेबल उनके पास, तो वो हमें शॉर्टलिस्ट करनी होती है, जाननी होती है। फिर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं डिटर्मिनेशन के, जहाँ ये बेसिकली कंफर्मिटी असेसमेंट का ही फेस है। जैसे कि मैंने की में आपको बताया फंक्शन है। तो जो ये इंफॉर्मेशन हमने आइडेंटिफाई की अपने सेलेक्टेड आइटम्स में से, उसमें से हमें डिटरमाइन करनी है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। एज अ रिजल्ट आप कह सकते हो, इवेल्युएशन कह सकते हो, हम डिटरमाइन करेंगे इंफॉर्मेशन से रिजल्ट्स। ठीक है, और डिटरमाइन करने के बाद हम फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे, जिस पे हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन ऑन फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट की। तो जब हम सिलेक्शन के बाद इंफॉर्मेशन हमें मिली किसी पर्टिकुलर लैब के अंदर, या फिर किसी मेजरमेंट को लेके हमने इंफॉर्मेशन, कोई भी आइटम हमने टेस्ट किया उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने ले ली, फिर उसको हमने डिटरमाइन में रखा, डिटर्मिनेशन के थ्रू डिटरमाइन किया उसकी जो रिजल्ट्स हैं, मेजरमेंट्स हैं। तो फर्दर जो हम फोर्थ पॉइंट में आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें चेक करना है कि जो फुलफिलमेंट थी उस आइटम की विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, वो क्या थी, मतलब उसने फुलफिलमेंट किया कि नहीं किया। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमारी एक रॉ मैनर में क्लियर हो जाती हैं। फर्दर इस फोर्थ पॉइंट को हम लेके जाते हैं फिफ्थ में, जो कंफर्मिटी असेसमेंट के फंक्शन के अंदर आता है, जैसे कि इस ब्लॉक में शो कर रहा है। तो उस हम फुलफिलमेंट के डेटा को, इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं डिसीजन लेने से पहले, कि जो रिक्वायरमेंट्स थी स्पेसिफाइड, उसको वो आइटम फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो अगर करता होगा तो हम अटेस्टेशन ग्रांट करेंगे थ्रू आवर कंफर्मिटी असेसमेंट, और उसको फर्दर हम डिसाइड करेंगे कि सर्विलेंस नीडेड है कि नहीं नीडेड है। ठीक है, सर्विलेंस नीडेड जो होती है बेस्ड ओवर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, बेस्ड ओवर द कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ से डिसीजन मेकिंग होती है सर्विलेंस नीडेड की। और इन केस फुलफिलमेंट जो है यहाँ पे डिसीजन पॉइंट का नो में आ रहा है, हमारा फुलफिलमेंट हमें आइटम के अंदर नहीं देखने को मिली है स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, तो हमारी जो कन्फर्मिटी असेसमेंट है
उसमें वो हमारी एंड हो जाती है और हमारे नेगेटिव रिजल्ट्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो सर्विलेंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो सर्विलेंस जो होगा नीड है उसकी, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिसाइड होती है। अगर सर्विलेंस की नीड है तो यस की कंडीशन में सेम पाथ हमें फॉलो करना है कन्फर्मिटी असेसमेंट के लिए, और अगर सर्विलेंस नहीं नीडेड है तो हमारी वहाँ पे कन्फर्मिटी असेसमेंट की प्रोसेस एंड हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, एज अ लेबोरेटरी, एज अ मेजरमेंट बॉडी, एज अ लेबोरेटरी बॉडी, एज अ कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी, क्या हमें फ्लो डायग्राम फॉलो करना है, पाथ फॉलो करना है कंफर्मिटी असेसमेंट को लेके, क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए जब भी हम एक लेबोरेटरी के थ्रू कंफर्मिटी असेसमेंट के लिए जाते हैं। तो यहाँ तक बात थी, हम यहाँ तक 3 क्लॉज कंप्लीट कर चुके हैं। पर्टिकुलर जो स्लाइड है मैंने एक्सटेंशन है पॉइंट क्लॉज 2 का, जिसमें हमने बात की थी नॉर्मेटिव रेफरेंसेस में ISO/IC 17000 2020 में के अंदर एज एन एक्शर ये। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्लॉज जो है वो है नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम फोर्थ क्लॉज को डिस्कस करेंगे, जिसमें इसका टाइटल है फोर्थ क्लॉज का जनरल रिक्वायरमेंट्स। पहला इसमें सब क्लॉज मैंने लिया है इम्पार्शियलिटी 4.1। इम्पार्शियलिटी में मैंने हाईलाइट किए हैं कुछ हेडिंग्स जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। इसी तरह से मैंने सेग्रीगेट किए रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट सब क्लॉसेस के अंदर थ्रू आउट द माई ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन एंड पीपीटी। तो इम्पार्शियलिटी के रिस्पेक्ट में जो सब हेडिंग्स हैं वो है एक्टिविटीज अंडरटेकन, स्ट्रक्चर्ड, मैनेज्ड, सेफगार्ड। फिर सेकंड हेडिंग है मैनेजमेंट, कमिटेड। नेक्स्ट हेडिंग है रिस्पॉन्सिबल, प्रेशर, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल डैश अदर्स। नेक्स्ट हेडिंग है आइडेंटिफाई रिस्क, ऑनगोइंग बेसिस, एक्टिविटी अराइज, रिलेशनशिप। और लास्ट हेडिंग है इम्पार्शियलिटी के अंदर रिस्क एलिमिनेशन। इसके अंदर कीवर्ड जो मैंने लिया है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन। तो मैं इम्पार्शियलिटी सब क्लॉज को जनरल रिक्वायरमेंट्स के अंदर अब आपको ब्रीफ करता हूँ, जो मैंने कीवर्ड्स आपको बताएं याद रखने के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है रिकॉल करने के लिए सब्जेक्ट को। हमने टर्म्स एंड डिफिनीशन में इम्पार्शियलिटी को समझा था, उसकी मीनिंग को समझा था, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है इम्पार्शियलिटी के रिस्पेक्ट में। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी और ऑब्जेक्टिविटी की हमने बात करी थी वहाँ पे। तो उसी के कॉन्टिन्यूशन में इम्पार्शियलिटी के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू जनरल रिक्वायरमेंट्स। तो पहली चीज जो इसमें स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी आपकी लेबोरेटरी की एक्टिविटी है वो इस तरह से होनी चाहिए कि इम्पार्शियलिटी जो है वो मेंटेन हो, और उसके लिए जो स्ट्रक्चर होना चाहिए इस तरह का होना चाहिए जो सेफगार्ड करे इम्पार्शियलिटी को। ठीक है, तो ये पहला जो चीज है इम्पार्शियलिटी के बारे में स्टैंडर्ड ये कहता है। स्ट्रक्चर की बात करता है, मैनेजिंग की बात करता है कि इंश्योर करना है कि स्ट्रक्चर्ड हमारा इस तरह का हो एक्टिविटी का, मैनेजिंग इस तरह से हो एक्टिविटी की कि जो इम्पार्शियलिटी है वो हम मेंटेन कर सकें और सेफ गार्ड उसको किया जा सके। सेकंड जो है मैनेजमेंट की कमिटमेंट हमें शो करनी है इम्पार्शियलिटी के रिस्पेक्ट। तो ये चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन के फॉर्म में, लीगल बाइंडिंग के फॉर्म में हमें शो करना है कि हमारा जो मैनेजमेंट है लैब ऑपरेशंस का, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ हम इंक्लूड कर रहे हैं,
उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं डिक्लेयर करें, कमिट करें कि हमारी जो भी ऑपरेशंस होंगी, जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी मैनेजिंग होगी, जो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, वो इम्पार्शियल वे में काम करेगा और हमें सेफ गार्ड करना है इम्पार्शियलिटी को हमारे डे टू डे ऑपरेशन में। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पार्शियलिटी है बात आती है कि स्टैंडर्ड कहता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है इम्पार्शियलिटी की। लैब पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा रिस्पॉन्सिबल इम्पार्शियलिटी को लेके, जो भी एक्टिविटी उसके अंडर में एग्जीक्यूट होंगी, की जाएंगी उन सारी चीज़ों के लिए। और साथ ही साथ वो किसी तरह से नहीं अलाउ कर सकता इम्पार्शियलिटी को। अगर कॉमर्शियल हम बात के रिस्पेक्ट में कोई एक्टिविटी हो रही हो, फाइनेंशियल फॉर्म में कोई एक्टिविटी हो रही हो, या फिर किसी अदर प्रेशर की वजह से किसी इम्पार्शियलिटी की कंडीशन जनरेट होती है, तो इन सारी चीज़ों को वो इंश्योर करे कि इस ये जो 3 मैंने पॉइंट बताए, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल या फिर कोई अदर प्रेशर है, तो इस तरह की कोई भी कंडीशन जनरेट होती है तो हमारी जो लैब की इंटीग्रिटी है इम्पार्शियलिटी को लेके, वो कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक लीगल बाइंडिंग के थ्रू लैब को डिक्लेयर करना है, जिससे कि जो भी पर्सनल इन्वॉल्व हैं, वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो क्लियर हो सके कि हमें किसी तरह का हमें इम्पार्शियलिटी को लेके कोई कंप्रोमाइज हमें नहीं करना है और हम लीगली बाइंडेड हैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ लैब। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था इम्पार्शियलिटी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बात करता है कि लेबोरेटरी को रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, जो भी इम्पार्शियलिटी को लेके हैं ऑन गोइंग मैनर में। मतलब सिंगल डे में इम्पार्शियलिटी को नहीं मैनेज किया जा सकता, या फिर उसको ऑन गोइंग मैनर में हमें देखना होगा, रिस्क को इवेल्युएट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्शंस हो सकते हैं उसको एक्सक्यूट करने का, उस इम्पार्शियलिटी के रिस्क को वो हमें लेने पड़ेंगे। तो ये ऑन गोइंग मैनर में चीज़ें होनी चाहिए। वीकली हो सकती हैं, मंथली हो सकती हैं, 15 डेज पे हो सकती हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स पे हो सकती हैं, न्यू इस तरह की नीड जनरेशन हो सकती है। तो ऑल जो इस तरह की फाइंडिंग्स हैं रिस्क को लेके इम्पार्शियलिटी की, वो सारी कंडीशंस में रिव्यू करना है, जिसमें रिस्क का आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरीके से हो सके। इसके साथ ही साथ ये जो रिस्क है वो कहाँ कहाँ से आ सकती हैं इम्पार्शियलिटी को लेके, उसके बारे में स्टैंडर्ड गाइड करता है कि वो एक्टिविटी से अराइज हो सकती हैं, जो लैब की एक्टिविटीज़ हैं कम्प्लीटली उनसे अराइज हो सकती हैं, किसी तरह का रिलेशनशिप है कंपनी का, मतलब आपकी लेबोरेटरी का रिलेशनशिप है किसी कस्टमर के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ, तो उसकी वजह से इम्पार्शियलिटी अराइज हो सकती है। किसी इंडिविजुअल के आपकी लैब के अंदर जो वर्क कर रहा है, पर्सनल है आपका खुद का, उसके किसी रिलेशनशिप की वजह से किसी फर्दर एक्सटर्नल पार्टी, बाहर के इंडिविजुअल से रिलेशनशिप है, किसी लैब से, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे इम्पार्शियलिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से टेक केयर करना है जब भी हम आइडेंटिफाई करने की बात करेंगे रिस्क को। साथ ही साथ स्टैंडर्ड जो है इसके लिए भी कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें ये बताई मैंने अभी 3 कंडीशन, एक एक्टिविटी को लेके, 2 रिलेशनशिप को लेके, कि वो ज़रूरी नहीं है कि इम्पार्शियलिटी क्रिएट करें, लेकिन हमें एक प्रोएक्टिव मैनर में एज अ जनरल रिक्वायरमेंट, एज अ इम्पार्शियलिटी सेफ गार्डिंग, हमें इस पे रिव्यू एज अ रिस्क हमें करते रहना है। इसके साथ ही रिलेशनशिप के बारे में स्टैंडर्ड बताता है कि कौन कौन से पर्टिकुलर रिलेशनशिप हो सकते हैं जिसकी वजह से
हमें रिस्क अराइज हो सकता है इम्पार्शियलिटी को लेके। उसमें पहला है ओनरशिप, सेकंड है गवर्नेंस, थर्ड है मैनेजमेंट, फोर्थ है पर्सनल, फिफ्थ है शेयर्ड रिसोर्सेज, सिक्स्थ है फाइनेंसेस, सेवेंथ है कॉन्ट्रैक्ट्स, एट है मार्केटिंग, नाइन्थ है पेमेंट ऑफ सेल्स कमीशन। तो ये सारी चीजें हमारी रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में है। इसकी वजह से हमारे इम्पार्शियलिटी के ऊपर रिस्क जनरेट हो सकता है। तो इसे हमें आइडेंटिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इम्पार्शियलिटी में कोई रिस्क ना जनरेट हो, उसके लिए हमें तैयार रहना है और एक्शंस हमें बना के रखने हैं कि कैसे हम सेफगार्ड करेंगे इम्पार्शियलिटी को। तो ये चीजें हैं इसमें। इसके साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट है इम्पार्शियलिटी को लेके, वो है जब भी कोई रिस्क हम आइडेंटिफाई करें इम्पार्शियलिटी को लेके, तो लैब को डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं उस रिस्क को। ठीक है। और लैब की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इम्पार्शियलिटी कंफर्मिटी असेसमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, जो कि मैंने पहले ही बताई है ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह से यहाँ कंफर्मिटी असेसमेंट के रिस्पेक्ट में भी इम्पार्शियलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, मतलब एक फंडामेंटल है या फाउंडेशन कह लीजिए, इसके लिए है कन्फर्मिटी असेसमेंट को। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक्शन प्लान होना चाहिए कि कैसे हम मिटिगेट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, मिनिमाइज करेंगे रिस्क को। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास हमारी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि हमने ये रिस्क जो आइडेंटिफाई किया था उसको हमने कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है या फिर मिनिमाइज कर दिया है अप टू द एक्सेप्टेंस लेवल। तो ये हमारा लास्ट रिक्वायरमेंट था इम्पार्शियलिटी को लेके। इसके बाद नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। वो है 4.2। इसमें है कॉन्फिडेंशियली की बात है। इसमें जो मैंने हेडिंग ली है पॉइंट वाइज, पहला जो है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगली कमिटमेंट्स डैश मैनेजमेंट, इन्फॉर्म एडवांस डैश इंटेंशन डैश पब्लिक डोमेन, रिस्पॉन्डिंग टू कंप्लेंट्स, proprietary information, release of confidential information obtained from source acting on laboratories behalf। तो ये सब मैंने कीवर्ड्स लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे हैं याद रखने के लिए, रिकॉल करने के लिए, नॉलेज के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी के रिस्पेक्ट में। अब मैं इस पर्टिकुलर क्लॉज को कॉन्फिडेंशियलिटी के 4.2 को आपको ब्रीफ करता हूँ। जो चीज़ें मैंने बताई अभी आपको कीवर्ड के फॉर्म में, तो जैसे इम्पार्शियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ फाउंडेशन वर्क करता है कंफर्मिटी असेसमेंट के लिए, वैसे ही कॉन्फिडेंशियलिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एज अ फाउंडेशन वर्क करता है कंफर्मिटी असेसमेंट के लिए। तो इस चीज के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड की पहली जो चीज कहनी है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके लेबोरेटरी को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और लीगली कहीं ना कहीं कमिटमेंट देनी है कि वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करेगा। साथ ही साथ जो सारी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन है उनका मैनेजमेंट जो है, और ये जो इंफॉर्मेशन उससे मिली है जो लेबोरेटरी के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसने एज अ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज अपने पास रखी है, ली है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, वो कॉन्फिडेंशियलिटी के थ्रू मैनेजमेंट कैसे यूज करेगा, ये सारी चीजें उस लीगल बाइंडिंग कमिटमेंट के अंदर इंश्योर करनी है कि कहीं भी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है
वो कंप्रोमाइज नहीं होगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के अंदर। इसके साथ ही साथ कुछ अदर कंडीशंस देता है स्टैंडर्ड कि कब हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं डिफरेंट पार्टीज के साथ डिफरेंट कंडीशंस में। तो अब उनकी बात करते हैं। तो पहली चीज है कि जब भी कोई लेबोरेटरी की इंफॉर्मेशन जो उसने यूज की है अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए और उसने गैदर की है, वो अगर उसको पब्लिक डोमेन में डालनी है लेबोरेटरी को, तो उसे एडवांस में उससे रिलेटेड जो कस्टमर है उसको बता देना है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये एडवांस कम्युनिकेशन हुई कस्टमर के साथ लैब की। जब भी आपका इंटेंशन होगा पब्लिक डोमेन में कुछ रिलेटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। साथ ही साथ इन केस अगर कस्टमर पहले से उसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पब्लिकली उस कस्टमर के द्वारा अवेलेबल कराया गया है, तो वहाँ पे ये जो एडवांस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है ISO IC 17025 की, वो अप्लीकेबल नहीं होती है। इसका ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड में बोलता है। या फिर यहाँ पे एक चीज और अप्लीकेबल है कि वहाँ पे जो कंडीशन है वो ये अप्लाई होती है कि आपके बीच में मतलब लेबोरेटरी और कस्टमर के बीच में एग्रीड टर्म्स क्या है इस चीज को लेके। ठीक है। तो ये चीजें हम इसके साथ ही स्टैंडर्ड में एक एग्जांपल देता है एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कि कोई कंप्लेंट जनरेट होती है, उस केस में आपको रिस्पॉन्ड करना है। अ, वो कंप्लेन किसी भी चीज को लेके हो सकती है क्योंकि आपने वहाँ पे कंफर्मिटी असेसमेंट किया है अपनी लेबोरेटरी के थ्रू कस्टमर के आइटम का। तो वो कंप्लेन किसी तरह की जनरेट हो सकती है। तो उस केस में अ, आपके टर्म्स क्लियर होने चाहिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग के। कैसे डील करेंगे आप उस कंप्लेंट को लेके, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए। तो इन कंडीशंस में हमें जो मैंने बताया तरीके जो स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं उनको फॉलो करना है और चीज़ों को कॉन्फिडेंशियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डील करना है। इसके साथ ही साथ अ, जो अदर इंफॉर्मेशन है जो कि कंप्लेन से रिलेटेड नहीं हो सकती हैं, वो आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, उनको आपको ट्रीट करना है कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। और वो प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन आपके लैब के होंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये पहली रिक्वायरमेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके। साथ ही साथ कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं जिसमें बात होती है कि इन केस कि कोई लॉ के अंडर या कुछ इस तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट आपने किया है जिसमें आपने ऑथराइजेशन दिया है रिलीज करने के लिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो उस कंडीशन में जब भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जिसको भी लॉ के अंडर या फिर जिसको आपने ऑथराइज किया एग्री किया किसी टर्म को लेके, तो उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने की वजह से जिनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है वो कस्टमर हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है जिसके ऊपर असर पड़े उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने से। तो वो इंफॉर्मेशन को पहले हमें नोटिफाई कर देना है उसके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर उस इंडिविजुअल को, अगर प्रोहिबिटेड नहीं किया हुआ है लॉ के अंदर। इस बात का ध्यान रखना है कि ये कंडीशनल है। दो कंडीशन है इसमें। पहली पहली तो ये है कि आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कब करोगे, तो पहला लॉ के थ्रू आप प्रोहिबिटेड मतलब लॉ के थ्रू आप
रेगुलेटेड हो, इस वजह से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ सकती है, या फिर आपने कोई टर्म इस तरह का एग्री किया अपने कस्टमर के साथ, उस केस में आपको शेयर करना पड़ सकता है। तो इन दोनों कंडीशन में अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो जो भी उस इंफॉर्मेशन शेयर करने की वजह से जिसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है, कस्टमर हो आपका या फिर इंडिविजुअल हो, तो उसको नोटिफाई करना है आपको। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, आप नोटिफाई तभी करोगे आपका अगर लॉ प्रोहिबिट नहीं करता है, मतलब लॉ आपको नहीं रोकता है नोटिफाई करने से। तो ये हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर। इसके बाद थर्ड पे आते हैं। इसमें ये करना है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स है कस्टमर के अलावा, जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई कंप्लेंट है, वो हमें किसी कंप्लेनेंट से आई है या फिर रेगुलेटर से आई है, तो उस केस में हमें कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी को डील करना है। तो इसमें पहली चीज ध्यान रखनी है कि जो सोर्स है वो कस्टमर के साथ नहीं शेयर करना है और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। साथ ही साथ जो सोर्स है जहाँ से कंप्लेन आई है वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है कस्टमर से, और कस्टमर के साथ सोर्स को नहीं शेयर करना है कि सोर्स कौन था जिसने कंप्लेन रेज की है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक टर्म ये भी है कि अगर हो सकता है जो सोर्स है उसने एग्री किया हो इस तरह का कोई टर्म जिसमें आप सोर्स की इंफॉर्मेशन को, सोर्स के बारे में आप कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज थी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक पर्टिकुलर कंडीशन है जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है कस्टमर के बारे में आपको मिलती है एज अ लैब इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेन, या फिर कुछ और इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी सोर्स के द्वारा, मतलब किसी बाहर के इंडिविजुअल के द्वारा, वो कोई रेगुलेटर हो सकता है, कंप्लेनेंट हो सकता है। तो उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल बना के रखना है कस्टमर और आपके बीच में। ठीक है, तो कस्टमर के द्वारा आप कस्टमर को नहीं शेयर करोगे, कस्टमर आपको नहीं शेयर करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो सोर्स की इंफॉर्मेशन है कि सोर्स कौन था, उसको आपको कस्टमर को नहीं शेयर करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है यहाँ पे, अनलेस आपको सोर्स ने आपके साथ एग्री किया है कि आप मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी, वो शेयर कर सकते हो अपने कस्टमर के साथ। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो ये थर्ड पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर। फोर्थ जो है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो लेबोरेटरी के बिहाफ पे वर्क कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उनको भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी करनी है। जो भी एक्टिविटी से रिलेटेड सारी तरह की इंफॉर्मेशन है लेबोरेटरी के परफॉर्मेंस को लेके, एक्टिविटी को लेके, और ये जो इंडिविजुअल हो सकते हैं उसमें भी स्टैंडर्ड बताता है। कमिटी मेंबर्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, पर्सनल्स हो सकते हैं, पर्सनल जो कि एक्सटर्नल बॉडी से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर साथ कोई और भी इंडिविजुअल हो सकते हैं। तो ये सारे लेबोरेटरी के बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को लेके लेबोरेटरी के, तो उनको भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। सारी तरह का इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है लेबोरेटरी की एक्टिविटी को लेके। और इन केस लॉ के द्वारा कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है, कोई लॉ आपके ऊपर अप्लीकेबल है या फिर लॉ आपको यहाँ पे रेगुलेट करता है इस तरह से कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की जो या फिर जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी होगी कुछ कारणों की वजह से, तो वहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे मेजरली जो बात हुई कॉन्फिडेंशियलिटी के रिस्पेक्ट में, वहाँ बात ये थी कि लॉ
के अंडर अगर आप फॉल कर रहे हो तो वहाँ आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, वहाँ आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान नहीं रखना है, या फिर आपने एग्री किया है कस्टमर के साथ, तो उस केस में आपको उस अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी को या इंफॉर्मेशन को डील करना है। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एज अ जनरल रिक्वायरमेंट ये दो मेन क्लॉजेस है, मतलब 4.1 एंड 4.2, इम्पार्शियलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो जो चीज़ें मैंने बताई ये बहुत ज़रूरी हैं, ये बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं जो होनी चाहिए एज ए कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी। अगर आप ये चीज़ें नहीं मेंटेन कर पाते हो तो आपकी जो कंफर्मिटी असेसमेंट है वो वैलिड नहीं रह जाती है, और आपको आपकी जो फर्दर आपका असेसमेंट है थ्रू रेगुलेटर्स, थ्रू पीयर असेसमेंट, थ्रू सेकेंड पार्टी ऑडिट, थ्रू थर्ड पार्टी ऑडिट, आपका अ, जो टाइटल है कंफर्मिटी असेसमेंट का वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, इम्पार्शियलिटी का और कॉन्फिडेंशियलिटी का। जब भी आप लैब की एक्टिविटी को एक्सिक्यूट करो, ऑपरेशंस को एक्सिक्यूट करो, और लीगल बाइंडिंग वे में इन दोनों चीज़ों को इंश्योर करो। जो भी आपके इंटरनल पर्सनल है, एक्सटर्नल पर्सनल इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल बॉडीज इन्वॉल्व हैं आपके साथ वर्क एग्जीक्यूशन में, या फिर वेंडर्स हैं जिनका आप यूटिलाइज कर रहे हो अपने वर्क को डिलीवर करने के लिए लेबोरेटरी के, तो उनके साथ भी आपको ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट डेवलप करना है इम्पार्शियलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके। तो ये चीज़ थी हमारा फोर्थ क्लॉज जनरल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्लॉज की तरफ जो कि है फिफ्थ क्लॉज। तो फिफ्थ क्लॉज है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। अब लेबोरेटरी की स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए वो यहाँ पे हम बात करेंगे। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है लेबोरेटरी का एज अ सिस्टम वो कैसा होना चाहिए, उन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है यहाँ पे मैंने डिफरेंट पॉइंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 इस पर्टिकुलर क्लास में, फिफ्थ में स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में। तो उनको मैंने सेग्रीगेट किया है हेडिंग वाइज जो रिक्वायरमेंट है फिफ्थ क्लास की। तो पहला जो उसमें मैंने हेडिंग दिया है वो है लेबोरेटरी एक्टिविटीज का। कीवर्ड्स में लिया है वो है लीगल एंटिटी, डिफाइंड पार्ट, लीगली रिस्पॉन्सिबल का। सेकंड जो हेडिंग मैंने लिया है वो है आइडेंटिफाई, मैनेजमेंट, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कीवर्ड है। थर्ड जो मैंने लिया है डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट रेंज, ISO 17025, claim conformity and compliance, external exclusions, ongoing basis। ठीक है, तो मैं यहाँ तक आपको ब्रीफ करता हूँ डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट तक। जो हेडिंग मैंने तीन डिस्कस किया आपके साथ कीवर्ड के साथ साथ। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चर वो है कि लेबोरेटरी जो है वो लीगल एंटिटी होनी चाहिए, मतलब वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में हो सकती है, एलएलपी फॉर्म में हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में हो सकती है, या फिर लिमिटेड फॉर्म में हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करता है लीगल एंटिटी के साथ स्टैंडर्ड की डिफाइंड पार्ट होना चाहिए लीगल एंटिटी का, जिससे कि जो इसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियर हो सके। जैसे कि जो कि वो एक्टिविटी एक्सिक्यूट करने वाला है, सर्विस देने वाला है, जो उसके बिजनेस का स्कोप है उसके अंडर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंफर्म हो सके, लीगली वो बाउंड हो सके अपने बिजनेस को लेके। तो दो चीजें थी, लीगल एंटिटी होनी चाहिए या फिर डिफाइंड पार्ट होना चाहिए किसी लीगल एंटिटी का। इसके साथ ही डिफाइंड पार्ट ऑफ लीगल एंटिटी का ये मतलब है कि होता क्या है, जैसे
सैम्पलिंग कलेक्शन सेंटर्स बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट लोकेशन में वर्क कर रहे हैं किसी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो वो सैम्पलिंग कलेक्शन सेंटर है या फिर रिमोट मोबाइल लेबोरेटरी है, वो जस्टिफाई कर सके कि वो डिफाइंड पार्ट है एक लीगल एंटाइटी का, जो मैंने बताया जिस तरह से आपको क्लेम करना है लीगल एंटाइटी होने का, तो उस पर्टिकुलर ट्रेसेबिलिटी को मेंटेन करना है एज अ डिफाइंड पार्ट। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे डिफाइंड पार्ट हमें कैसे क्लैरिफाई करना है, जस्टिफाई करना है। साथ ही साथ एक एग्जांपल स्टैंडर्ड देता है गवर्नमेंट लेबोरेटरी का कि अम, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लीगल एंटाइटी हम। तो गवर्नमेंट लेबोरेटरी जो है एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट स्टेटस हम उसे लीगल एंटाइटी क्लेम कर सकते हैं या उसको मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर हो गए लीगल एंटाइटी के रिस्पेक्ट में, डिफाइंड पार्ट लीगल एंटाइटी के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ आप लीगली रिस्पॉन्सिबल हो जो भी लैब की एक्टिविटी आप एक्सिक्यूट करने जा रहे हो और या सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आप लीगली बाउंडेड हो जब भी आप लेबोरेटरी की एक्टिविटी को एक्सिक्यूट कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो उससे रिलेटेड। साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पे बात करता है स्टैंडर्ड की मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन का, जिसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लेबोरेटरी को लेके। ठीक है, तो हमें कवर करना है लेबोरेटरी कंप्लीट एक्टिविटी को जो कि हम डिलीवर करने जा रहे हैं किसी कस्टमर को, किसी इंडिविजुअल को। तो उसमें आने वाली जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसके रिस्पेक्ट में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन किस मतलब कितनी बड़ी हमारी मैनेजमेंट टीम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है या फिर गवर्न कर रही है या फिर जिनके इन्वॉल्वमेंट से ही हम लेबोरेटरी की एक्टिविटी को डिलीवर कर सकते हैं, एक्सिक्यूट कर सकते हैं, या फिर जो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है डिलीवरी की एक्टिविटी को लेके वो हम रीच कर सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट होगा वो हमें क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसमें मैनेजमेंट आपके इंटरनल इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, सैम्पलिंग के लेके डील हो सकती है, साइट टीम हो सकती है, मोबाइल टीम हो सकती है, जो आपका इन हाउस फैसिलिटी है उसकी टीम के साथ 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 ही साथ कोई पर्टिकुलर वर्क आप एक्सिक्यूट कर रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं से सोर्स कर रहे हो या फिर कोई ना कोई वेंडर इन्वॉल्व है पर्टिकुलर वर्क के लिए, जो कि डे टू डे बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एक्टिविटी डिलीवरी के लिए। तो उसको भी आपने मैनेजमेंट में आपको ऐड करना है और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करनी है कि उसको ये पता हो एज अ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेबोरेटरी। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। सेकंड थर्ड जो पॉइंट है उसमें स्टैंडर्ड बात करता है डिफाइन और डॉक्यूमेंट करने की कि लेबोरेटरी की रेंज क्या है। ठीक है, कि रेंज के अंदर वो कौन कौन सी एक्टिविटी कंफर्म करने जा रहा है ISO/IC 17025 को लेके। ठीक है, तो ये रेंज जो है नॉर्मल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड में हम बात करते हैं स्कोप की, यहाँ पर्टिकुलर रेंज है जो टर्म यूज हो रहा है 17025 को लेके, उसको हमें डिफाइन और डॉक्यूमेंट करना है कि ओवरऑल रेंज क्या है जो एक्टिविटीज डिलीवर करेगा लेबोरेटरी और जिसके बेसिस पे वो कन्फर्मेंस शो करेगा ISO/IC 17025 को लेके। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपने भी देखा होगा या आपने एनेबल के सर्टिफिकेट्स देखे होंगे जो एनेबल ग्रांट करता है या फिर किसी अदर एक्रीडेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट्स देखा होगा या वेबसाइट पे अवेलेबल है डेटा डिफरेंट सिस्टम लैब्स के। तो वहाँ पे एक मेन सर्टिफिकेट निकल के आता है, साथ ही साथ एक सेकंड
लिस्ट निकल के आती है वो रेंज की होती है कि कौन कौन सी लेबोरेटरी एक्टिविटीज के लिए एक्रीडेशन लिया हुआ है उस पर्टिकुलर टेस्टिंग लैब ने अंडर ISO/IEC 17025। तो ये जो रेंज है उसको डिफाइन और डॉक्यूमेंट करना है टेस्टिंग लेबोरेटरी को क्लियरली। और साथ ही साथ जो कन्फर्मिटी क्लेम करेगी लेबोरेटरी ISO/IEC 17025 को लेके, वो इस पर्टिकुलर रेंज के लिए करेगी, ऐसा स्टैंडर्ड कहता है। तो ये रेंज क्लियर करना, प्रॉपरली डिफाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप अपनी कन्फर्मिटी को क्लेम कर सको विथ रिस्पेक्ट टू 17025। ठीक है। साथ ही साथ अगर कुछ ऑन गोइंग बेसिस पे आप कुछ एक्टिविटीज डिलीवर कर रहे हो एज अ लेबोरेटरी, तो उसको आपको एक्सक्लूड करना है अपने रेंज में, और उस पर कन्फर्मिटी नहीं शेयर करनी है, मतलब शो करनी है, या फिर अपने रेंज में उसको इंक्लूड नहीं करना है जब भी आप कन्फर्मेंस की बात करोगे ISO/IEC 17025 को लेके। तो ये बात थी पॉइंट 3 तक स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के अंदर। आपको मेरी बात समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट्स मीट। इसमें जो मैंने कीवर्ड लिया है वो है ISO 17025, कस्टमर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रिकॉग्निशन, फैसिलिटी, परमानेंट, साइट, मोबाइल, कस्टमर्स, ये कीवर्ड्स लिए हैं। और जो फिफ्थ हमारी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के अंदर हेडिंग मैंने ली है उसमें है शेल के माध्यम से मैं यहाँ पे डिनोट करना चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, हमें इसको फुलफिल करना ही करना है एज अ लेबोरेटरी। इसमें जो सब हेडिंग लिया है मैंने वो है डिफाइन, उसके अंदर कीवर्ड है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, पेरेंट डैश मैनेजमेंट डैश ऑपरेशंस डैश सपोर्ट। फिर स्पेसिफाई की सब हेडिंग ली है मैंने, उसके अंदर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड इंटर रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्ट। और लास्ट जो सब हेडिंग लिया है जो हमें मैंडेटरी कंफर्म करनी है ISO 17025 को लेके, वो है डॉक्यूमेंट। उसके अंदर कीवर्ड लिया है मैंने प्रोसीजर, एक्सटेंट, इंश्योर, एप्लीकेशन, वैलिडिटी। तो यहाँ तक मैं ये दो लास्ट के जो पॉइंट्स हैं स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के अंदर क्लॉज 5 में, उनको ब्रीफ करता हूँ अपने ट्रेनिंग के थ्रू आपको। तो इस पर्टिकुलर फोर्थ पॉइंट में स्टैंडर्ड जो कहता है या स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि जो लेबोरेटरी की एक्टिविटी है, जो वर्क है, जो सर्विसेज है वो दे रहा है कन्फर्मिटी असेसमेंट को लेके, वो उसको इस तरह से एक्सिक्यूट करनी है, डिलीवर करनी है, जिससे वो जो भी रिक्वायरमेंट्स उसके ऊपर अप्लीकेबल है उनसे वो मीट कर सके। ठीक है, कंप्लाई कर सके, कन्फर्मिटी शो कर सके उन रिक्वायरमेंट को लेके। और ये रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ से मिलेंगी उसके बारे में भी स्टैंडर्ड बताता है। पहली जो रिक्वायरमेंट उसको मिलती है कन्फर्मिटी को लेके एक कॉम्पिटेंट लैब की तरह होने की, वो पहली ISO/IEC 17025 है, उसको मीट करना है, उसको कंफर्म करना है, कन्फर्मिटी शो करनी है। साथ ही साथ कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको भी मीट करना है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज की कोई रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना है, और साथ ही साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी कुछ हो सकती है। तो इन सारी कंडीशन में जो रिक्वायरमेंट निकल के आती है, इन सारी रिक्वायरमेंट को उसको मीट करना है, कंप्लाई करना है, कन्फर्मेंस शो करना है जब भी वो अपनी एक्टिविटीज को डिलीवर करे या फिर परफॉर्म करे अपनी एक्टिविटी को लेके। तो इस चीज के बारे में स्टैंडर्ड बोलता है, इस चीज को फॉलो करना है, मेंटेन करना है एज अ स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट इन द फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट जो इसमें एक एडिशनल बात ये है फोर्थ पॉइंट में कि इसमें कवर करना है जो एक्टिविटी हम डिलीवर करने जा रहे हैं एज अ लेबोरेटरी,
तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो परमानेंट हमारी फैसिलिटी है वो तो अ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हमें टेक केयर करनी है, इस्टेब्लिश करनी है, मीट करनी ही करनी है। साथ ही साथ अगर कोई साइट पे हमारी लेबोरेटरी की एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे भी करनी है। कोई हमारी टेम्परोरी या फिर मोबाइल फैसिलिटी है वहाँ पे हो रही है तो उस जगह पे भी हमें ये रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म करना है, मीट करना है। और साथ ही साथ एक एडिशनल है कि अगर कस्टमर्स की फैसिलिटी है वहाँ पे हम कोई लेबोरेटरी की एक्टिविटी को एक्सिक्यूट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी हमें इंक्लूड करना है जब भी हम रिक्वायरमेंट को कंफर्म करने की बात करेंगे, उसको मीट करने की बात करेंगे, कंफर्म करने की बात करेंगे। तो इन सारी कंडीशंस में हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारी लेबोरेटरी की एक्टिविटी है वो मीट करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट जो मैंने अभी आपको बताई, डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट जो कि अप्लीकेबल होती है डिफरेंट कंडीशंस में लेबोरेटरी की एक्टिविटी को लेके, उसकी रिकॉग्निशन, उसकी एक्रीडेशन, उसके डिक्लेरेशन, उसके लीगल बाइंडिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। अब हम फिफ्थ पॉइंट जो हमने शैल में बात करी थी उसकी बात करते हैं। इसमें जो पहली चीज है रिक्वायरमेंट के रूप में स्टैंडर्ड में वो है डिफाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन को और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को क्लियरली। तो ऑर्गेनाइजेशन को मतलब उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी हिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर, उसकी साइट, उसकी कैपेबिलिटी, उसके रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों को मतलब क्लियरली बताना है डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए और टेक केयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मैनर में उस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है अच्छी तरीके से। और इसके साथ ही अगर लेबोरेटरी जो है पर्टिकुलरली अगर किसी पेरेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की किसी पेरेंट लेबोरेटरी का पार्ट है तो उसको भी इस डिफिनीशन के अंदर जो डिफाइन कर रहे हैं हम चीज़ें उसमें उसका प्लेस को डिफाइन करना है कि वो किस पोजीशन में है उस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के और उसके रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करती है वो, जो ओवरऑल मैनेजमेंट एक्टिविटी का लैब के को लेके, टेक्निकल ऑपरेशन है उसको लेके, जो सपोर्ट सर्विसेज है उसको लेके। तो आपको एक क्लैरिटी देनी है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। इन सारी कंडीशंस में आप इंडिविजुअल टेस्ट लैब हो सकते हो, आप एक बिग पेरेंट कंपनी के छोटे से पार्ट हो सकते हो, लेबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफर्मिटी असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दोनों कंडीशन में आपको क्लियरली एक डिफिनीशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिफाइन करनी है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को लेके, टेक्निकल ऑपरेशंस को लेके, सपोर्ट सर्विसेज को लेके। तो ये चीज़ें पहली हैं जो हमें आपको करनी है एज ए लेबोरेटरी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है उसमें बात होती है स्पेसिफाई करने की, मतलब क्लियरली डिफाइन करने के लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और इंटर रिलेशनशिप के बारे में जो भी पर्सनल लेबोरेटरी की एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं और जिनके होने से जो रिजल्ट्स हैं लेबोरेटरी एक्टिविटी के उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो अगर इन सारी चीज़ों में जो भी पर्सनल इन्वॉल्व हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और इंटर रिलेशनशिप सभी तरह के पर्सनल का आपको क्लियरली डिफाइन करना है, स्पेसिफाई करना है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको खुद भी कोई मतलब कंफ्यूजन ना जनरेट हो, आपको कोई फर्दर आपका वेरिफिकेशन करने के लिए, आपको ऑडिट करने के लिए आए तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और उसको भी क्लियर होना चाहिए कि पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है। और अगर दो बंदे किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उनका इंटर रिलेशनशिप क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को लेके। तो इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है लेबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है
उसमें बात आती है कि उसे स्टैंडर्ड कहता है कि जो प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ठीक है, जिससे जो एप्लीकेशन है उन डॉक्यूमेंटेशन का, उन प्रोसीजर्स का, उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, और जो जिससे कि हम जो लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंटेन कर सकें प्रोफिशिएंट तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट मैनर से, और जो रिजल्ट्स हमें मिले वो वैलिड हो, उनकी वैलिडिटी को हम इंश्योर कर सकें। तो कोई भी जो आपके यहाँ चीज़ें हो रही हैं लेबोरेटरी के अंदर, कुछ भी हो जिसकी वजह से रिजल्ट्स पे असर आ सकता है, उसकी वैलिडिटी के ऊपर, एक्टिविटी जो आप डिलीवर कर रहे हो अपनी लेबोरेटरी के थ्रू, उसके ऊपर असर आ सकता है। तो इस तरह का कोई भी प्रोसीजर है तो उसको आपको एक अच्छे फॉर्म में डॉक्यूमेंट करना है, रिटन फॉर्म में, और सॉफ्ट कॉपी हो चाहे हार्ड कॉपी हो, और अ, एक मतलब समझने वाली लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट करना है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपके यहाँ होनी चाहिए। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट जो नेक्स्ट दो पॉइंट्स हैं उसमें फिफ्थ है अपना, सॉरी सिक्स पॉइंट है पर्सनल को लेके। मैंने इसमें हेडिंग पर्सनल ली है। इसमें जो मैंने कीवर्ड लिए हैं वो है इररिस्पेक्टिव डैश अदर डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर है अथॉरिटी डैश रिसोर्सेज डैश ड्यूटीज, इंक्लूडिंग में है IMI मैनेजमेंट सिस्टम, डेविएशन आइडेंटिफिकेशन, एक्शंस इनिशिएशन, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, इंश्योर इफेक्टिवनेस। और लास्ट जो पॉइंट है उसमें हेडिंग ली है मैंने लेबोरेटरी मैनेजमेंट। उसमें जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं वो है कम्युनिकेशन डैश इफेक्टिवनेस डैश इम्पोर्टेंस डैश रिक्वायरमेंट्स, फिर है इंटीग्रिटी डैश मेंटेन डैश चेन। तो यहाँ तक कीवर्ड्स मैंने लिए हैं। और ये लास्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के अंदर फिफ्थ क्लॉज में। अब मैं इनको आपको ब्रीफ करता हूँ सीक्वेंस वाइज, पहले सिक्स पॉइंट को फिर सेवेंथ पॉइंट को। सिक्स पॉइंट में स्टैंडर्ड बात करता है एक इंडिविजुअल की, एक पर्सनल की, जो बाकी काम से आज़ाद हो, उसके ऊपर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अथॉरिटी नहीं नहीं अप्लीकेबल हो, या फिर इन्फोर्स किया जाए उसको कुछ अदर वर्क के लिए, जो भी लैब में एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे। तो इस तरह का एक बंदा आपके पास होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, जो कि आपके इस पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट का सिक्स पॉइंट है उसके लेके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क की उसको एक्सिक्यूट कर सके डे टू डे। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, ये क्वालिटी मैनेजर होता है। जब अगर एनेबल की बात करेंगे तो उसमें क्वालिटी मैनेजर की रिक्वायरमेंट है एक बेसिक। जब एनेबल एक्रेडिटेशन के लिए जाते हैं हम, अलग अलग एक्रेडिटेशन बोर्ड में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है इस पर्सनल का। यहाँ पे पर्टिकुलरली ISO IC 17025 में पर्सनल की बात होती है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा, पर्सनल होगा, फॉर डिनोशन मैं यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर वर्ड यूज करूंगा उस पर्सनल को लेके, जिससे आपको क्लियर कर सकूं जो रिक्वायरमेंट है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है उसकी वो। तो को जो क्वालिटी मैनेजर होगा उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए और रिसोर्सेज होने चाहिए, जिससे वो अपनी जो उसकी ड्यूटीज हैं वो अच्छी तरीके से डिलीवर कर सके। तो ये जो अथॉरिटी और रिसोर्सेज हैं क्वालिटी मैनेजर को लेके, इसको इंश्योर करना है टेस्टिंग लैबोरेटरीज को कि वो ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करें जहाँ तक उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिससे कि वो जो रिक्वायरमेंट्स के रिस्पेक्ट में कन्फर्मेंस है उसको वो फुलफिल कर सके, डे टू डे चीज़ों को मेंटेन कर सके, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके, ठीक है, और मॉनिटरिंग और मेजरिंग कर सके उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है कि इंश्योर करना है अथॉरिटी और रिसोर्सेज उस क्वालिटी मैनेजर के
जिससे कि वो अपनी ड्यूटीज को डिलीवर कर सके। इसके साथ ही साथ कुछ चीजें और बोलता है स्टैंडर्ड की क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो जो क्वालिटी मैनेजर होगा, जो मैनेजमेंट सिस्टम है ओवरऑल लेबोरेटरी का, उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा, मेंटेन करेगा और इम्प्रूव करेगा। ये उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएंगी चीजें। ठीक है, तो पहली बात ये है, और ये बात का ख्याल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पहली बार ISO IC 17025 में पहली बार मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है। अभी तक हमने जितने भी क्लॉसेस डिस्कस किए इंट्रोडक्शन से लेके अभी तक, तो वहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम वर्ड नहीं मैंने यूज किया या फिर रेफरेंस नहीं दिया स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यहाँ पर्टिकुलरली मैनेजमेंट सिस्टम का टर्म यूज करता है स्टैंडर्ड, और बात कहता है कि जो क्वालिटी मैनेजर होगा उसको इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है और इम्प्रूव करना है मैनेजमेंट सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ISO/IC 17025। तो ये पहली चीज है, अथॉरिटी और रिसोर्सेज के एडिशनल जो स्टैंडर्ड बोलता है क्वालिटी मैनेजर के रिस्पेक्ट में, इंडिविजुअल पर्सनल के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो है वो डेविएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्वालिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर जो भी प्रोसीजर है लेबोरेटरी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उससे रिलेटेड कोई अगर डेविएशन है, किसी भी तरह का डेविएशन वो देखता है तो उसको आइडेंटिफाई करना है सिस्टम को लेके, प्रोसीजर को लेके। ठीक है, परफॉर्मेंस को लेके, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई करे प्रोएक्टिव मैनर में उस डेविएशन को। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट उसकी। साथ ही साथ अगर वो जो डेविएशन उसने आइडेंटिफाई किया है तो उसको एक्शन प्लान करना है, एक्शन डेवलप करने हैं मैनेजमेंट के साथ मिलके, और इनिशिएट करना है एक्शन को जिससे कि प्रिवेंट कर सके, मिनिमाइज कर सके उस डेविएशन को। तो ये नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी मैनेजर की, इंडिविजुअल की, जो ISO IC 17025 कहता है। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी रिपोर्ट करने की लेबोरेटरी मैनेजमेंट को, जो भी परफॉर्मेंस है मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, इम्प्रूवमेंट को लेके, डेविएशंस को लेके, वो सारी चीज वो रिपोर्ट करेगा लेबोरेटरी के मैनेजमेंट को। मतलब ये ध्यान रखना है यहाँ पे स्पेसिफिकली टाइम बाउंड की नहीं बात कर रहा है, लेकिन टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो उसका ध्यान रखना है कि चीजें इफिशिएंट मैनर में हो, इफेक्टिव हो और किसी तरह का गैप ना आए उसमें। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था, रिपोर्ट करना मैनेजमेंट को लेबोरेटरी के सिस्टम, प्रोसीजर, रिजल्ट्स में किसी तरह का डेविएशन आ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में, या फिर इम्प्रूवमेंट कोई हमें दिख रही है क्वालिटी मैनेजर को तो उसको भी रिपोर्ट करना है। और जो नेक्स्ट और लास्ट है उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो है जो इफेक्टिवनेस है उसको इंश्योर करना है, जो भी एक्टिविटीज लेबोरेटरी डिलीवर कर रही है, एक्सिक्यूट कर रही है, उसको लेके। तो ये जो चीजें हैं ये सारी क्वालिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इंडिविजुअल पर्सनल की बात कर रहा है ISO IC 17025, उसकी इन सारी चीजों का जो टेक केयर है वो ओवरऑल क्वालिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए वो इररिस्पेक्टिव है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसकी एक खास जो पोजीशन है, खास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी है, जिससे कि कंफर्मिटी असेसमेंट जो है बॉडी की वो इंश्योर हो सके, कंफर्मिटी उसमें दिख सके, कंप्लायंसेस मैच हो सके, और फर्दर एज अ लैब कंप्लायंसेस को जस्टिफाई किया जा सके। तो उन सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी लैब को, तभी चीज़ें जस्टिफाई हो सकेंगी। अगर कहीं पे भी गैप आता है तो जो जस्टिफिकेशन है, आंसरिंग है, वो क्वेश्चनेबल हो जाती हैं टुवर्ड्स द accredited body like NABL, या फिर आपका कस्टमर है उसके सामने, या फिर कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्निशन दे रही है उसके सामने।
इसके बाद 7th पॉइंट पे आते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के अंदर 5th क्लॉज में। 7th पॉइंट तो उसमें बात करता है स्टैंडर्ड की जो लेबोरेटरी मैनेजमेंट है उसको इंश्योर करना है कि कम्युनिकेशन के द्वारा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शेयर की गई हों। सभी जो पर्सनल इन्वॉल्व हैं लेबोरेटरी के एक्टिविटीज़ को डिलीवर करने के लिए उन्होंने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया हो रिक्वायरमेंट्स को, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है उस रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, इम्पोर्टेंस को अच्छे तरीके से समझ लिए हों। इस चीज़ को इंश्योर करना है और साथ ही साथ जो इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम हमें डेवलप करना है उसका भी इम्पोर्टेंस उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो इस तरह का कम्युनिकेशन करना है टाइम टू टाइम थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एक अवेयरनेस, थ्रू थ्रू डिस्प्लेस, थ्रू नोट्स, थ्रू स्लोगन। हमें ये चीज़ें कम्युनिकेट करनी है डे टू डे जिससे एक अच्छा इफेक्टिवनेस मेंटेन हो सके मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। तो ये 7th पॉइंट का पहला चीज़ था जो इंश्योर करना है लेबोरेटरी मैनेजमेंट को। दूसरी बात ये है जो इंटीग्रिटी है मैनेजमेंट सिस्टम की वो मेंटेन रहे। जब भी कोई चेंज आता है मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर वो चेंज कैसा हो सकता है कोई प्रोसीजर आप चेंज कर लियो या फिर कोई इक्विपमेंट आपने चेंज किया हो उस कंडीशन में, कस्टमर चेंज हुआ है या फिर कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक आई हो आपके सामने किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके, तो उन सारी कंडीशन में अगर कोई चेंज आता है हमारे मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तो मैनेजमेंट लेबोरेटरी के मैनेजमेंट जो है उसको इंश्योर करना है जो लेबोरेटरी की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे, किसी तरह का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आए। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था। इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि जब भी चेंज की बात होगी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके तो वो प्लान मैनर में ही इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। तो प्लान मैनर में करने में ये भी होता है कि उसमें मैनेजमेंट रिव्यू होते हैं, उसके बेसिस पे प्लानिंग होगी और इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जाएगा कि उस पर कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, साथ ही साथ कोई ट्रेनिंग की नीड है, रिसोर्स की नीड है तो वो भी आइडेंटिफाई की जाती है। तो ये लास्ट पॉइंट था स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के अंदर 5th पॉइंट। इसके बाद 6 क्लॉज है जो कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट है। अभी फिलहाल के लिए मैं 5th क्लास पे स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स तक आपको इस ट्रेनिंग को एज अ पार्ट 1 कंप्लीट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में मिलेंगे जहाँ पे हम 6th क्लास से आगे के क्लॉजेस को 6th क्लास के साथ साथ डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, जय हिंद।